वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstatic love onto the personality of Godhead, who is the proprietor of all universes, and guarantees 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. Purport. The inquiries of the sages headed by Shaunaka are herein praised by Suta Goswami on the merit of transcendental nature. As already concluded, only the devotees of the Lord can know Him to a considerable extent, and no one else can know Him at all. So, the devotees are personally cognizant of all spiritual knowledge. The personality of Godhead is the last word in the absolute truth. Impersonal Brahman and localized Paramatma are included in the knowledge of personality of Godhead. So, one who knows the personality of Godhead can automatically know all about Him, including His multiplications and expansion. So, the devotees are congratulated as being all successful. A 6% devotee of the Lord is immune to the dreadful material miseries of repeated birth and death. Hare Krishna. So we are on chapter number 1, chapter number 3 and the text number 39. There Suta Goswami is glorified the question which is asked by Shaunaka Rishi in the forest. All the rishis they came together to ask what is the exact remedy for the Kali Yuga people, because they are already downtrodden, they are already fallen. The Sati Yuga was great, the Treta Yuga was great, the Dwapar Yuga was also people were very pious. But in Kali Yuga the people are not that pious. The impiety is full everywhere. What is the remedy? Some of them are sincere souls, and if they want to come to Krishna or want to perfect their life, what is the remedy? So, Suta Goswami is now reciting the same thing which Shukadeva Goswami has recited to Parikshit Maharaj on the query of Parikshit Maharaj that what is the duty of a dying person. Hindi में बोलना है? Okay, sorry, refer. तो परीक्षित महाराज ने जो क्वेरी किया हुआ था, जो प्रश्न पूछे हुए थे शुकदेव गोस्वामी के सामने, कि जो व्यक्ति मृत्युशैया के ऊपर है या जिसका मृत्यु बहुत जल्दी पास में आने ही वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसका ड्यूटी क्या है, उसकी कर्तव्य क्या है, उसने क्या करना चाहिए। तो जब श्रीमद् भागवतम की कथा आती है तो उस टाइम पे लोग डायरेक्ट जो मृत्यु जिसका पास में आया हुआ है उस व्यक्ति के लिए बोला गया है कि उसने ये भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। अभी तो जिंदगी बहुत बात हुई। हम में से कितने लोग हैं जिनको पता है यस दिस इज व्हाट माय लास्ट टाइम विल बी, या इतने साल में भौतिक जीवन में मैं जीने वाला हूँ या मैं जीने वाली हूँ करके। हम में से कितने लोगों को गारंटी है कि कल का अलार्म में लगाने के बाद कल का अलार्म में सही में सुन ही पाने वाला हूँ या सुन ही पाने वाली हूँ करके? बहुत कम। कमल दल चल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति है। हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कमल के तल के ऊपर रखे हुए पानी के समान है। अगर आपने कमल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंद देखा हुआ ना, एक क्षण भर के लिए वो भी रहती नहीं है, वो तुरंत बह के चली जाती है, वो रुक नहीं पाती, उसके ऊपर जो ऑयलीनेस रहता है उसके वजह से। तो वैसे ही है हमारा जो भौतिक जीवन है वो एज यूजुअल माय फेमस डायलॉग, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, इतना ही रहता। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि 2 महीने पहले इसको जून में हमारे संडे फीस्ट में आने वाला एक बच्चा था, दिलेश ना 22 इयर्स का लड़का,
अपने दोस्तों के साथ वो पुणे घूमने के लिए गया रात को, अचानक 1 बजे उसको अनईजीनेस फील होने लगा। विद इन 15 मिनट्स ही गॉट अ हार्ट अटैक इन हिज बॉडी। 22 साल का लड़का, उसके खुद के भी अपने कितने सारे शेड्यूल्स रहेंगे, उसके अपने प्लान्स रहेंगे, परंतु ये भौतिक जगत क्रूअल, बहुत क्रूर पद्धति का ये भौतिक जगत है। हम इसको इतना गारंटी दिखा रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, इस पद्धति से हम इस भौतिक जगत में चलते हैं। तो भौतिक जगत जो है हम लोगों को कब धोखा दे दे पता नहीं चलता। तो इसीलिए शौनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न पूछा है, और परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा है कि मृत्यु शैया पे बैठे हुए व्यक्ति की क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य होते हैं, वो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सबके सब मृत्यु के एक एक दिन पास में जा रहे हैं। तो जैसे प्रलय के हमने 4 नाइट देखे हुए थे पिछली बार, उसमें से जो नियमित नित्य प्रलय रहता है वो हमारे शरीर का रहता है, कि हर एक दिन हम मृत्यु के पास में जाते हैं, बराबर है। Today is Radha Shankar Mataji's birthday. I'm sorry to say this statement, okay, but it just came. It's not because your birthday is there, but if we are celebrating our birthday, that means today I am 38. Tomorrow, if I am celebrating 39th birthday, that means I have already passed 1 year in this body and I am close to leaving this body. That is the proper understanding. That means whether I have utilized my all those years in Krishna service sincerely, that should be the meditation. And how the next year I can be more closer to the God. So our every day, today I slept and tomorrow I am getting up. So that means I am already near to 24 hours to that death personification. So what Srimad Bhagavatam gives us a message, जो हम लोगों को Srimad Bhagavatam मैसेज देता है, वो मैसेज केवल सुखदेव गोस्वामी, केवल परीक्षित महाराज या केवल जो भक्त मृत्युशैया के ऊपर है उनके लिए नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में उतना ही सिंसियरली हमें लेना चाहिए जितना परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में लिया हुआ है। ठीक है, तो only by making such inquiries in this world one can be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the personality of Godhead. So even जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न किया, तो शुकदेव गोस्वामी भी उनके प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं। वरियानेश ते प्रश्न कुतो लोक हितम नृपा, कि वह आपने क्या प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज, आपका प्रश्न ऐसा है जो बाकी लोगों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उनको क्या करने वाला है, सहायता करने वाला है। इस पद्धति का ये प्रश्न हमारे जीवन में हमारे पास इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासुपन बहुत रहता है, परंतु हमारा जिज्ञासुपन किसमें रहता है, किस तरीके से मैं तृप्ति ज्यादा कर पाऊँ। अरे ये कैसा था, ये मोबाइल कैसा है, वो जगह घूमने के लिए कैसा है, करके ये खाया तो कैसे लगता है, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये मैकडॉनल्ड, ये क्या है वो बर्गर किंग और ये KFC कैसा है, मैं जाके देखो। तो हमारा जो जिज्ञासुपन, हमारा जो इंक्वायरीज रहता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवन में हमारे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देता है। परंतु जिज्ञासुपन या इंक्वायरीज इस पद्धति से होनी चाहिए जो हमारे इटर्नल फायदे के लिए, अनंत जीवन के लिए फायदेमंद होना चाहिए, और बाकी लोगों के फायदे के लिए भी अगर वो होता है वो जिज्ञासुपन, तो उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। ठीक है, इवन इस भौतिक जगत में भौतिक चीजों के प्रति भी किसी ने जिज्ञासुपन किया, उसका उत्तर उसको मिलके उसका फायदा अगर सोसाइटी में समाज को होता है तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है ना। एक साधारण सा एप्पल सर के ऊपर गिरा, ठीक है ना, तो उसका इंक्विजिटिवनेस, उसका जिज्ञासुपन जो है, जिज्ञासा जो है, श्रीमान श्री श्रीमद विक्टर प्रभु के अंदर जागृत हो गया। तो उसकी वजह से बहुत सारा उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति की, भले वो भौतिक है परंतु
हम जैसे भक्तों को भी उसमें प्रचार और प्रसार में थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही रहा है करके, बराबर है। तो इसीलिए जिज्ञासु पर ऐसा रहना चाहिए जो समाज के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और विशेषता अगर वो आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए अगर होता है तो उसका ग्लोरिफिकेशन केवल यह जगत में ही नहीं, उसकी स्तुति केवल यह जगत में ही नहीं परलोक में भी होगी। वही शौनकादि ऋषि और परीक्षित महाराज के द्वारा यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद परपट में बोलते हैं The devotees, only the devotees of the Lord can know Him to the considerable extent, and no one else can know Him at all. So एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, स वेद धातु पदवीं परस्य, रतिक प्रसंगस्य दूरंत वीर्यस्य रथांग पाने यो मायया संततमानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये श्रीमद् भागवतम का आई थिंक आपने कल लिया है ये श्लोक। कल दिया, आज भूल गए। अरे एक्चुअली दैट्स गुड, अगर हम पढ़ते हैं उसे प्रेरणा लेते हैं और भूल जाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वापस पढ़ने के लिए उससे हमें एक बहाना मिल जाता है। सो कल ही वो श्लोका देखा हुआ है, स वेद धातु पदवीं परस्य दूरंत वीर्यस्य रथांग पाने यो माया संततानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। और उसका ट्रांसलेशन, उसका भाषांतर किस पद्धति से जाता है, ओनली दोज हु रेंडर unreserved, uninterrupted, favorable service unto the lotus feet of Krishna, who carries the wheel of chariot on his hand, can know the creator of universe in its full glory, power and transcendence. जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है किस पद्धति से, तीन चीजें दी गई है उसको। कौन सी? अनरिजर्व, कुछ रिजर्व करके रखा है ऐसा नहीं, वो भगवान की सेवा करनी, ये लो 10 रुपए और मेरे पास तो मैं लाखों रुपए रख के रखूंगा नहीं, भगवान के लिए जितना जरूरी है, हाँ ले लो प्रभु जी, आपको इतना जरूरी है, आज ये अभिषेक के लिए, ये लाने के लिए भगवान के लिए ये ले लो, नो रिजर्वेशन। अरे नहीं, अगर ये मंदिर में सेवा के लिए मैं जाऊंगा, रात के 11 बजे सोने को होगा, फिर मैं सुबह नहीं उठूंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरा नाक खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो जाऊंगा, दंडवत प्रणाम ऑफर करूंगा, हरि बोल करूंगा, आ जाऊंगा। दिस इज नॉट रिजर्वेशन। तो अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई उसमें ब्रेक नहीं। आज मैंने किया, कितना किया? 16 वाला किया प्रभु जी। कल कितना किया? 1.6 किया प्रभु जी। परसों कितना किया वाला? 0.16 ही किया प्रभु जी। केवल 16 बिट्स चैट किए हुए। दैट इज व्हाट इंटरप्टेड सर्विस। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों के बीच में भी, हम लोगों को एक दिन ऐसा भर के भक्ति आता है, आज मैं कर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुकिंग भी करूँगा भगवान के लिए, डेटी वर्शिप भी करूँगा, मैं प्रचार भी करूँगा, प्रसाद भी करूँगा, कितना भी करूँगा, हरि बोल। और दूसरे दिन हम लोगों को लगता है इतना करूँगा मैं अकेला, आज बस माला करके आ रहा हूँ। दिस इज नॉट एन इंटरप्शन, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह की कमी। फिर तीसरा क्राइटेरिया फेवरेबल, जो भक्तों के लिए और भगवान के लिए फेवरेबल है, वही सेवा हमें करनी चाहिए। ठीक है, जो भगवान के हम रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, और हमारे किसी भी कार्य की वजह से हम भगवान का या इस्कॉन के नाम के ऊपर अगर लोग कुछ ऐतराज लेते हैं, तो वो सेवा के प्रति हम लोगों ने पीछे रहना चाहिए। यहाँ पे मैं 16 वाला करूँगा, लेकिन वहाँ पे बुचर शॉप में जाकर सेवा करूँगा, इज इट अ गुड थिंग? इट्स नॉट गुड। तो मैं वेदर भौतिक सर्विस रहे या मेरी डिवोशनल सर्विस क्यों ना रहे, वो फेवरेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से प्रचार और प्रसार जो है वो बढ़ना चाहिए। मैं ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से प्रचार करना है, परंतु मैं फेस्टिवल करूँगा, ठीक है, फेस्टिवल करना है, तो मुझे हमें फेस्टिवल करना है, प्रसाद क्या बनना है तो पता नहीं, देख लिया जाएगा।
फिर उसके बाद अभिषेक के समय लोग लाइन के दूध वगैरह तो कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपने लोगों को इनवाइट किया बट यू हैवंट डन प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट, यू हैव टेकन प्रॉपर केयर ऑफ द डिवोटीज। तो उसके वजह से रादर लोग खुश होना, भक्त खुश होने की जगह पे वो नाराज हो जाते हैं। तो वो फेवरेबल डिवोशनल सर्विस नहीं है, वो अनफेवरेबल डिवोशनल सर्विस बनते हैं। तो इसीलिए हमारी भक्ति में जो हम भक्ति में सेवा भी कर रहे हैं वो भगवान के प्रति बहुत फेवरेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, The personality of Godhead is the last absolute truth. भगवान को जानने के लिए 3 स्तर पे जानते हैं, ये मैं बहुत बार हमने डिस्कस किया। वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दे। भगवान जो है 3 तरीके से जाने जाते हैं। पहला भगवान को जानने का स्तर है ब्रह्मेति, भगवान निराकार, निर्विकार, ओंकार, प्रकाश के स्वरूप में है। वो जो निराकार ओंकार है, उनको इस भौतिक जगत में जब आना है तब वो आकार लेते हैं और फिर इस भौतिक जगत में आके अलग अलग लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं समाप्त होने के बाद वो आकार को छोड़ के निराकार, निर्विकार, ओंकार को जाके सम्मिलित हो जाते हैं। हम भी निराकार हैं, तुम निराकार भाव के ऊपर आप क्या करो, ध्यान लगाओ, एक दिन आप भी उसमें जाके सम्मिलित हो जाए। ये होता है ब्रह्म पहला वाला, जो बहुत बेसिक है। प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद कोविड याद कीजिए, एक रूम के अंदर बैठे रहना, ना किसी के साथ आपका संबंध है, केवल फोन के ऊपर थोड़ी बात हुई तो टीवी के ऊपर भी वही टेलीकास्ट हो रहा है करके, ना नई मूवीज आ रहे हैं, ना इंटरनेट पे कुछ नया आ रहा है, लोग वही इंटरनेट पे डाल रहे हैं। आज मैंने केक बनाया, आज नहीं, यही उनका चल रहा था करके, बराबर। तो अगर एक रूम के अंदर 4 लोगों के साथ रहना 1 साल के लिए, वो हमें अगर बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो जहाँ पे कोई भी नहीं है, केवल सफेदी है सब जगह पे और हम हैं, बाकी कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं। कितना बैठेगा व्यक्ति वहाँ पे, तो ब्रह्म ज्योति में वो प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण भले ही वो भगवान का एक एस्पेक्ट है, भक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाके सम्मिलित होना, निर्विकार ओंकार में जाके अपने आप को मर्ज कर देना, इसमें भक्त इंटरेस्ट नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पे मजा नहीं है ना। एक रूम में शांति से ऐसे बैठना, यह आनंदमयी है। या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमना, ट्रिप पे जाना, इसमें सबसे ज्यादा आनंद है। सेकंड वाले में ज्यादा आनंद आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा एस्पेक्ट, परमात्मा लोकलाइज। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में है, परंतु ये भी सेकंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी है, परंतु ये लिमिटेड है कि भगवान चराचर सृष्टि में सब जगह पे है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में, मेरे हृदय में परमात्मा स्वरूप है, तो फिर विग्रहों की सेवा क्यों करो? उधर आप मेरी सेवा करो, मैं आपकी सेवा करूँगा, परमात्मा की सेवा हो जाएगी। मानव सेवा है मानव सेवा, तो ये डेविएशन उसमें भी आ जाता है। तो मंदिर की जरूरत क्या है, विग्रहों की सेवा की जरूरत क्या है? भगवान तो आप सभी के हृदय में रहते, प्राणी मात्राओं के हृदय में रहते, कुत्ते के, गधे के, घोड़े के रूप में भी भगवान उसके शरीर उसमें है, परमात्मा के स्वरूप में उनकी भी सेवा करें। इसलिए भगवान को इंस्टेड ऑफ गॉड ये सभी ये क्लियर होता है, तो लोग डेविएशन उसमें भी आते हैं। परंतु भगवान का जानने का सर्वोच्च स्तर क्या होता है? गोलोक वृंदावन में कृष्ण अपने साक्षात साकार स्वरूप में श्रीमती राधा रानी के साथ और अपने अन्य पार्षदों के साथ रहते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण अपने पार्षदों के साथ और भक्तों के साथ सेवा करते हैं। ये जो भगवान एस्पेक्ट है ये सर्वोच्च है, वो पीएचडी की तरह। और जो व्यक्ति भगवान के भगवत एस्पेक्ट को अपने जीवन में धारण करके उसकी सेवा करता है,
वो भगवान के परमात्मा फीचर को, वैशिष्ट को भी अपने जीवन में स्वीकृत करता है और ब्राह्मण को भी स्वीकृत करता है। भले उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको इंटरेस्ट केवल भगवत स्वरूप में रहता है, जो आध्यात्मिक जगत में नित्य स्वरूप में भगवान रहते हैं, अपने साकार स्वरूप में रहते हैं। तो उसको निर्विकार स्वरूप में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको सेवा चाहिए होती है। तो निर्विकार स्वरूप मतलब क्या, पहले दूसरे का बच्चा रहता है जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, उसके लिए ठीक है। परंतु साकार सविकार जो स्वरूप है भगवान का, वो पीएचडी के लेवल का होता है। और जिसने पीएचडी किया है उसको पहले स्टैंडर्ड का नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आता है ना। तो यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, वन हु नोज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कैन ऑटोमेटिकली नो द ब्रह्मन एंड लोकलाइज्ड परमात्मा एस्पेक्ट ऑफ गॉड। परमात्मा और ब्रह्मन एस्पेक्ट को वो अपने आप जान जाता है, अगर उसने भगवान की भगवत साकार सविकार स्वरूप में सेवा चालू कर दी है तो कर। एंड उसी की वजह से उसको सारा नॉलेज आता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवते अकिंचन सर्वैर् गुणस्तत्र समासते सुरहराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासतो धावतो भवति। जो कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है उसको ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। हाँ, अभी आप लोग भक्त बन गए तो बताओ मुझे a+b² क्या होता है? हाँ देखो, आपको नहीं आ रहा है तो क्या बोल रहे हो आप कि भगवान के भक्त बन जाते तो सारा ज्ञान आ जाता है ना। नास्तिक लोगों का एक संकुचित प्रवृत्ति, संकुचित बुद्धि रहता है। वो किस चीज का क्या मतलब निकलते हैं उनको पता नहीं चलता। से भगवान का एस्पेक्ट या भगवान का भक्त बनने के बाद उसको सारा ज्ञान आता है, मतलब हाँ उसको मैथ्स भी पता चलेगा, हिस्ट्री भी पता चलेगी, ज्योग्राफी भी पता चलेगी। तो भौतिक चीजों के बारे में बात नहीं की गई है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब ये भौतिक जगत कैसे चल रहा है, भौतिक जगत में क्या तकलीफें आती है, इससे दूर कैसे जाना है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान क्या है, भगवान को प्रसन्न कैसे करना है, भगवान के भक्त क्या होते हैं, ये जो ज्ञान है उसको ऑटोमेटिकली आता है। अगर किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको उस पद्धति, उसको कैसे बाहर निकालना है, इसका ज्ञान उस व्यक्ति के पास होता है। उसको गाइडेंस वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से दे सकता है, ताकि वो मानसिक दृष्टि से नीचे न जाए। ये सब काउंसल करने का जो ज्ञान है वो भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली आता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जाती है, भौतिक ज्ञान की नहीं है। मतलब 1942 में क्या हुआ था नहीं पता है, इसका मतलब आपका शास्त्र झूठ बोलता है। इस पद्धति से जब लोग बोलते तो उनका वो नास्तिकवाद जो है वो बहुत ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि जो वाक्य सामने बोला या शास्त्र में जो बोला गया है उसका कंक्लूजन कैसे निकालना है, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी संकुचित रहती है। उनकी बुद्धि केवल भौतिक चीजों से ही डील करती है, और वो भौतिक चीजों के तरफ डील करते करते क्या होता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम क्या आता है, उनको लगता है सर्वस्व इस जीवन में क्या है, ये भौतिक जीवन है। तो उनकी बुद्धि संकुचित, परंतु भक्त को पता चलता है कि भौतिक जगत टेम्पररी है, ये अशाश्वत है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए शाश्वत जीवन मिलता है, और ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत रेयर है। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है कि जो वासुदेव को सर्वस्व मानता है, वासुदेव को भगवान मान के वासुदेव के भक्ति योग में अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आपको बहुत दुर्लभ तरीके से मिलेगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि हजारों जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में आते हैं, ऐसे हजारों भौतिक जगत में जीवात्मा आने के बाद उसमें से एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो आज हमारे बीच में जितने भी भक्त यहाँ पे भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ भक्तों का संग भी बहुत दुर्लभ होता है।
तुलयान अपि लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भव भगवत संगे सदस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। श्रीमद् भागवतम बताता है एक सिंसियर भक्त जो रहता है उसका जो संग रहता है वो दुर्लभ तो रहता है परंतु इतना सौभाग्यशाली है कि अगर किसी जीवात्मा को स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग सुख मिल जाए या ब्रह्मलोक का भी सुख मिल जाए, वो भी उसके सामने तुच्छ है। किसके सामने? एक सिंसियर और एक शुद्ध भक्त का संग मिलने के आगे। इतना स्तुति किया गया है भगवत संग का। तो हम लोगों को अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भौतिक जगत में श्रील प्रभुपाद की कृपा की वजह से हमें हजारों हजारों भक्तों का संग प्राप्त हुआ। जब भगवत संग में आते हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं, थोड़ा बहुत हमें दिखाई देगा कि किसी भक्त के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ तकलीफें है कर, परंतु उसको अगर हम अपने जीवन में टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं और सबके साथ कोऑपरेट करते हुए चलते हैं, तो ना केवल हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, उस भक्त की भी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तकलीफें आएंगी, जमेगा नहीं, बाबा मुझे नहीं जमेगा, सत्यनारायण प्रभु ये वो ऐसे व्यक्ति है, चंद्रवंशी नहीं वो तो वैसे व्यक्ति है करके, ऐसी तो हजारों चीजें चलेगी, परंतु ये सभी शॉर्टकमिंग, सभी अनर्थ, ये वो को अगर हम संभाल के अपने जीवन में सभी भक्तों के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छे से। श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को बोला था, ये केवल प्रभुपाद के शिष्यों को नहीं, उनके ग्रैंड शिष्यों के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या श्रील प्रभुपाद बोले थे? इफ यू वांट टू शो योर लव टुवर्ड्स मी, कोऑपरेट विद ईच अदर। एंड प्रभुपाद के शिष्यों ने वही किया। भले ही उनकी मूड अलग है, भले उनका तरीका अलग अलग है श्रील प्रभुपाद को सेवा करने का, परंतु उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके श्रील प्रभुपाद के प्रति अपना प्रेम दिखाया। जैसे भगवान के प्रति और हमारे गुरु महाराज के प्रति अगर हमें प्रेम दिखाना है तो अभी श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। चाहे हमारे मूड अलग हो, चाहे हमारे तरीके अलग हो, चाहे हमारे बैकग्राउंड अलग हो, चाहे हमारे वर्ण आश्रम कुछ भी अलग हो, भगवत सेवा में हम सब एक है। हम दास ये मूल को हमारे जीवन में हमें हमेशा स्वीकृत करना चाहिए, अंगीकृत करना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अल्प विराम लेंगे और फिर से मिलेंगे कल यही श्रीमद् भागवतम कक्षा में, इसी जगह, इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।